today we will discuss the topic that is the oxides of 17th group elements, or you can say the oxides of halogen. And in today's lecture we will discuss first the formula of the oxides of different elements, कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं 17th ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कितने ऑक्साइड्स बनाते हैं, व्हाट आर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज. देन वी विल स्टडी व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइड्स. Number 3, we will study there is a oxide that is ClO2. In ClO2, in spite of presence of odd electron, it does not undergo dimerization. So we have to study कि in spite of presence of odd electron, why it doesn't undergo dimerization. After that, in the last, we have to study the stability of oxides. So I'll start first with the meaning of oxides. No doubt all of you in the 12th class know the meaning. Oxides are simply the binary compounds of an element with oxygen. अगर कोई भी आपका एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो दैट इज सेड टू बी द ऑक्साइड्स. तो ये डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर. नाउ विल स्टडी द फर्स्ट वन जो हमें स्टडी करना है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स. So we know that there are basically halogens, fluorine, then chlorine, bromine and iodine. Before I start this, I want to tell you one thing that most of the oxides, सबसे important चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि most of the oxides are unstable. Very important point. And second point, I will tell you one thing that chlorine form the largest number of oxides, whereas iodine form the least number of oxides. Now we'll discuss their formulas. तो बेटा जो फ्लोरीन है, it form two oxides. The formula is OF2 and O2F2. OF2 and second one is O2F2. Now when we go to the chlorine, then the chlorine will form 4 oxides. फ्लोरीन ने 2 ऑक्साइड्स बनाए, क्लोरीन विल फॉर्म 4 ऑक्साइड्स. द फॉर्मूला इज नंबर 1 Cl2, देन द सेकेंड वन इज ClO2, देन Cl2O6 and finally Cl2O7. So these are the formulas of the, you can say, oxides of chlorine. Then as far as bromine is concerned, it forms 3 oxides. The formulas are Br2O, just like Cl2O. Simply हम लिखेंगे Br2O. Second one is BrO2, and the third one is BrO3. Now when we go to the iodine, then iodine will form again 3 oxides. The formulas are I2O4, second one is I2O5, and the third one is I2O6. Now out of these 3 oxides of the iodine, I2 oxide is I2O5. This is said to be the true oxide of iodine. सो बेटा एक टोटल हमने व्हाट वी सिंपली गॉट कि जो हमारे ऑक्साइड्स हैं वो कितने हैं. फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स. यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज बिकॉज कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द हालोजेंस और 17th ग्रुप एलिमेंट. सो आपको पता है कि इनके अलावा अगर किसी और कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला मिलता है देन दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड्स डज नॉट फॉर्म बाय द 17th ग्रुप एलिमेंट्स. सो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स OF2, O2F2. Chlorine form 4 oxides Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. As far as bromine is concerned, it forms Br2O, BrO2, BrO3, and in the last iodine basically form 3 oxides I2O4, I2O5 and I2O6. Out of these 3 I2O5 को we will say the true oxide of iodine. Now after that we will study the next is structure of oxides. Now number 2 we will study the structure of oxides.
So now see the structure one by one. First we'll draw the structure of OF2. This is the oxide of fluorine as far as structure is concerned. O, this is F, this is F. Now ऑक्सीजन will have the total 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 उसने यूज करे. सो यहाँ पर we are having the 2 lone pairs. This is the structure of OF2. Now second is O2F2. जो O2F2 का स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वी हैव डन इन द 11th क्लास. बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है एज H2O2. सिंपली आई ड्रॉ O, दिस इज F हेयर, F हेयर. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2F2. नाउ यहाँ पर एक चीज, अब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर अगेन 2 लोन पेयर्स आर लेफ्ट. आई सिंपली शो लाइक दैट. यहाँ पर भी वी विल शो द 2 लोन पेयर्स. ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सेंट्रल एटम है उनके लोन पेयर आपको शो करना है. समटाइम द एग्जामिनर विल डिडक्ट द मार्क्स, तो उस चीज से बचने के लिए हम इसको प्रॉपरली करके चलते हैं. तो ये आपके ऑक्साइड्स हुए फ्लोरीन के. इसमें से बी क्लियर, OF2 इज द स्टेबल ऑक्साइड, वेयर एज O2F2 इज द unstable oxides. Clear? Oxide of fluorine. So these are the structure of oxides of fluorine. Now we'll go to the next one, chlorine. Chlorine के केस में स्टडी करते हैं. Now in the chlorine, first is Cl2O. तो ऑक्सीजन is the central atom. This is the chlorine. This is the chlorine. Again the 2 lone pairs. Clear? So simple structure, not any issue. After that we will study ClO2. नाउ इन ClO2 जो आपका क्लोरीन है वो सेंट्रल एटम है, इस चीज को ध्यान रखना है. क्लियर? एंड आई विल गेट ऑक्सीजन और यहां पर ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन. बी क्लियर? दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. क्लियर? चलिए, दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ClO2. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज सेड टू बी द ऑड इलेक्ट्रॉन species. After that, next is Cl2O6. Now Cl2O6 में what we are having 2 central atom. तो बेटा ये आप Cl बनाएंगे, ये सेकेंड Cl आपने ड्रॉ किया, 2 सेंट्रल एटम है. ठीक है ना? क्लियर? 3 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, 1 2 and 3. 3 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, 1 2 and 3. And these chlorine they will combine with each other. ठीक है ना? with a single bond. So this is the structure of Cl2O6. Now as far as Cl2O7 is concerned, ये जो आपका स्ट्रक्चर है Cl2O6, सिर्फ आपको क्या काम करना है, इसमें एक ऑक्सीजन बीच में इंट्रोड्यूस करना है. सो आई ड्रॉ हेयर, जस्ट सी केयरफुली. दिस इज 1 Cl, दिस इज अनदर Cl. आई राइट हेयर Cl2O7. So 3 oxygen on left hand side, 1 2 and 3. 3 on the right hand side like that, and 1 oxygen in the band shape like that in between the 2 chlorine atoms. So this is regarding the, you can say, oxide of fluorine. बिल्कुल start करना. First oxygen central atom था. Whenever the chlorine is central atom, be remember this is a odd electron species. After that Cl2O6 में we have made 2 chlorine central atom. After that 3 oxygen on left hand side, 3 on the right hand side. फिर हमने क्या किया? We have joined them just. After that in the case of Cl2O7, be remember one thing. 2 central atom है chlorine. 3 oxygen on this, 3 on this. एक oxygen with in the band shape, दोनों क्लोरीन से कंबाइन करेगा, and it will have the 2 lone pairs that you have to remember this point. ठीक है? So this is regarding the structure of, you can say, oxides of chlorine. Now we'll do the structure of oxide of iodine, and iodine has only one true oxide, that is I2O5. दिस इज द ओनली वन ट्रू ऑक्साइड ऑफ आयोडीन. सो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वेरी सिंपल है, बिल्कुल ध्यान करना है आपको. दिस इज आयोडीन, दिस इज सेकेंड आयोडीन. 2 सेंट्रल एटम है बेटा, ध्यान से ड्रॉ करना है. ठीक है ना? आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अब आपके पास 5 ऑक्सीजन है. सो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 2 ऑन राइट हैंड साइड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑल आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दीज आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. वैसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आप इसको बोल सकते हो. नाउ जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है वो बीच में बैंड शेप में आएगा. ठीक है? एंड एवरी आयोडीन विल हैव द 1 लोन
pair. One lone pair you will show here and this you will show here. Clear? और इस पे 1 2 3 4. So this is regarding the structure of I2O5. So this we have completed the structure of oxides. Now the next thing that we have to study कि ClO2 does not dimerize. Just see the reason of this question. ClO2 does not dimerize to form Cl2O4, whereas NO2 dimerize to form N2O4. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है. NO2 भी आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ClO2 भी आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. ठीक है ना. NO2 डाइमराइज होकर बनाता है N2O4, ClO2 डाइमराइज नहीं होता. बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है. अगर हम डिस्कशन करें, दिस इज ClO2, ये ठीक है. और NO2 में देखो कंपैरिजन करना है आपको. क्या कंपैरिजन है इसमें? अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर करें, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये. अब क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस है? नाइट्रोजन इज हैविंग द स्मॉल साइज, whereas क्लोरीन इज हैविंग द मोर साइज. क्लोरीन का साइज ज्यादा है. कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है. इफ यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, whereas नाइट्रोजन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, दिस विल बी 1s2 2s2 2p3. सो नाइट्रोजन हैज 2 मेन शेल्स, whereas chlorine has 3 main shells. So due to more number of main shells, जो क्लोरीन का साइज होगा, that will be you can say more than नाइट्रोजन. अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज होगा क्लोरीन पे. नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होगा. तो यहाँ पर अब रीजन हम क्या लिखते हैं? देखिए, क्लोरीन के केस में व्हाट विल आई राइट? जो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड, और आई विल से इट इज नॉट लोकलाइज्ड. ठीक है. जबकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, देयरफॉर आई विल से ऑड इलेक्ट्रॉन इज नॉट डीलोकलाइज्ड. वो एक ही जगह पर रहेगा. वी विल से द ऑड इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड. अगर लोकलाइज रहेगा तो ये अपने दूसरे NO2 से कंबाइन करके बॉन्ड बना सकता है, एक ही जगह पे रहेगा. यहाँ पर साइज बड़ा होने की वजह से ये डीलोकलाइज होगा दिस वे. तो डीलोकलाइज होने की वजह से क्या होगा? ये अपने दूसरे ClO2 मॉलिक्यूल के साथ डाइमर नहीं बनाएगा. सो बिल्कुल बेसिक सिंपल रीजन आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू द बिग साइज ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, एक पॉइंट पर लोकलाइज नहीं हो पाएगा, ड्यू टू विच यहाँ डाइमर फॉर्मेशन नहीं होगा. क्लियर? सो नाउ वी विल शिफ्ट टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. ना पहले एक जनरल डिस्कशन करते हैं बेटा कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजेंस में, तो हमें क्लोरीन के ऑक्साइड्स, फिर ब्रोमीन के ऑक्साइड्स और फिर आयोडीन के ऑक्साइड्स. क्लियर? इनमें हमने बेसिकली स्टडी करना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर क्लोरीन का केस स्टडी करें तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दीज ऑक्साइड्स आर स्टेबल. रीजन बिल्कुल क्लियर. क्लोरीन में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देन आई विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन. इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0. it has empty d orbitals. क्लियरली विजिबल है. क्लोरीन में आपका empty d orbitals है. ठीक है ना. सो इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है. तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ये हमने डिस्कस किया कि रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ यू कैन से ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के क्यों स्टेबल होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, एक्सपेंड ऑक्टेट हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड. अब हम स्टडी करेंगे रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ
ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन कि आयोडीन के ऑक्साइड क्यों स्टेबल होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास पॉइंट आया वो क्या था, पॉइंट नंबर 1 कि ये जो आपका आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस चीज को देखना, दिस आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज मोर पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों सबसे ज़्यादा होगी मैं बताता हूँ। अगर आप डाउन द ग्रुप चले, सिंपल आप FO बॉन्ड को लीजिए, देन यू विल टेक ClO बॉन्ड, देन यू विल टेक BrO बॉन्ड, देन यू विल टेक IO बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम एलिमेंट है। बट जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ जाओगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है इस ऑर्डर में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ड्यू टू विच इट बिकम्स मोर पोलर। सो इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी ड्यू टू मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो पहला रीजन हमने स्टडी किया कि भाई आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ClO बॉन्ड में मिलेगा, देन विल गेट BrO बॉन्ड, और फाइनली सबसे ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में मिलने वाला है, आई गेट इन द आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो पहला रीजन हमने स्टडी कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल। हमारे जो नेगेटिव आयंस है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ये हमारे नेगेटिव आयंस है, ठीक है। इनकी जो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन, वो एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर होगा दैट इज F नेगेटिव से ज़्यादा Cl नेगेटिव, उससे ज़्यादा Br नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किस आयन की है, आपकी I नेगेटिव आयन। तो आयोडीन ऑक्साइड्स आर स्टेबल ड्यू टू द टू मेन रीजन, नंबर 1 द आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड इज हाईली पोलर, ठीक है। नंबर 2 जो आपका I नेगेटिव आयन है इट हैज़ द हाई पोलराइजेबिलिटी, क्लियर। अब बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर हम कैसे लेके आए। देखिए क्लोरीन में एक अपना रीजन है स्टेबिलिटी का, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोडीन के ऑक्साइड्स में देर आर टू रीजन, बट ब्रोमीन जो है इन दोनों के बीच में आता है, तो वो ना तो क्लियर कट इस रीजन को एक्सप्लेन कर सकता है, ये उसमें क्लियरली एप्लीकेबल होता है, ना ही उसमें ये वाला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर से देखिए हम एक प्रॉपर ऑर्डर में चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। जब ब्रोमीन जो है सिंस इट कम इन बिटवीन द क्लोरीन एंड आयोडीन, तो उसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसमें ना तो ये वाला पॉइंट आपका फिट बैठता है कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, नहीं ये फिट बैठता है। इट मीन्स जब आप ऑर्डर करोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये सबसे पहले आ जाएगा, और जो ऑर्डर मेरे को मिलेगा, द ऑर्डर आई विल गेट लेस स्टेबल ब्रोमीन ऑक्साइड्स, देन क्लोरीन ऑक्साइड्स एंड देन आयोडीन ऑक्साइड्स। रीजन अब आपको क्लियर है, ये आयोडीन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का रीजन, ये क्लोरीन ऑक्साइड के स्टेबिलिटी का रीजन। और ब्रोमीन क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन ना तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टेबल प्रूफ कर सकता है, ना ही इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टेबल प्रूफ कर सकता है। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन द टॉपिक दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट, एंड वी हैव कंप्लीटेड दीज 3-4 टॉपिक्स, formulae, then structure, then very important ClO2 does not dimerize, and in the last this is the order of stability। और इसमें आपको कंपेयर करना है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। पहले हमने ऐसे समझाया, फिर प्रॉपर ऑर्डर हमारा आया, ब्रोमीन से ज़्यादा स्टेबल क्लोरीन एंड क्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल आयोडीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।